दिस इज व्हाट सोसाइटी नेवर टॉक्स अबाउट। पर जब कुछ सेलिब्रिटीज ने इस बारे में बोलना शुरू किया, जैसे दीपिका पादुकोण एंड सुशांत सिंह राजपूत का भी जो केस हुआ था, मेंटल हेल्थ, दैट इज अ सीरियस मैटर। Hello and welcome, beautiful souls, to another empowering episode of the She Squad podcast with me, Pratima Bhattacharya. Today, we are diving into a conversation that truly matters: mental health. We are here to break the stigma, share powerful insights, and remind you that you're never alone on this journey. So grab your tea, get comfy, and let's welcome our inspiring guest, Miss Rinku Jain, who's here to shine a light on healing and hope. Thank you, Rinku ji, for being on the show. And please tell us something about yourself. Well, I'm a holistic counselor, guide, mentor, a psychologist, and my background is like I'm started my career with the medical biochemistry and teaching medical students and having a 24 years of experience mentoring, guiding, and teaching to 5 years to 70 years, a very broad range of people. Wow. And working with this mental health from past 4 to 5 years because I feel that the this is the need of the hour. Absolutely, absolutely true. And it sounds very interesting. Anyways, let's start with my first question because the topic is so interesting. And a lot of ladies and as well as everybody will relate to this topic because किसी ना किसी एज में लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजरते ही हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, बट हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. But today, we are not talking about everybody. As a She Squad member, we are talking about only females and the problems they face. So, my first question to you is like, people age and they have hormonal changes also. Things like periods, pregnancy, and menopause. It mess with our mental health. Could you please explain how? Yes, Pratima, very indeed a very appropriate question when it comes to women. They are undergoing so many phases, right from their menstruation cycle starts, the puberty starts until they are into, a phase where they are menopause, and then between they have the pregnancies and all other things. So yes, hormones play a very, very important role in whatever the mood swings we face, the bloating, फीलिंग डिप्रेस्ड और लो. तो हॉर्मोन्स का रोल ऐसे होता है ना कि जैसे हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो ये भी रिलीज होते हैं उसी वक्त जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 11-12 years when the girls are getting their first menstrual cycle. So these hormones are fluctuating over the month. And during pregnancy also, there are different hormones which are playing an important role in the pregnancy period all over the 9 months. And when the menopause is there, the estrogen and all these hormones become low. So because of this hormonal fluctuations, what happens is the woman is undergoing mood swings. Okay, she becomes irritable, she becomes depressed, she becomes feels very low, she doesn't feel like doing anything, or she doesn't want anybody to disturb her. Other ailments are there, as we all know, like stomach pain हो गया या bloating हो गई, ये सारी चीजें होती है. तो ये सोसाइटी नहीं समझती है बिकॉज पहले के जमाने में तो ये था कि पीरियड स्टार्ट हो गया आप आराम करो, है ना. फिर वो एक बिल्कुल. टैबू हो गया कि हमें आइसोलेट कर दिया जाता है, पीरियड्स को गंदा माना जाता है, तो हम तो आराम नहीं करेंगे, हम नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे. पहले की औरतों को बहुत काम होते थे, पानी लाओ ये करो. अभी तो थोड़ी लाइफ हमारी काफी इजी हो गई है. बट ये जो जी. पार्ट होता है जो हमको लो फील कराता है, हमारी एनर्जी लेवल्स नीचे लाता है, उस वक्त आराम की जरूरत होती है. पर अभी जो मल्टीपल रोल्स वुमेन प्ले कर रही हैं, दे आर वर्किंग ऑल्सो, दे आर लुकिंग आफ्टर द हाउस ऑल्सो, स्टडीज ऑल्सो, मेनी लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि फैमिली इस चेंजेस को समझे और एज अ वुमेन हम लोग समझें और फिर हम उस पर काम करें. तो हॉर्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड आवर एक्सरसाइज पार्ट, these hormones remain in a balanced state and we can overcome all this problems of mood swings and depression.
ओके, गुड टू नो दिस, क्योंकि मुझे हमेशा मतलब बचपन में तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ हमारे जो इश्यूज हैं या जो मैं फील कर रही हूँ दैट इज ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस। वो तो अभी मुझे जाके आई गेस आफ्टर 35 आई स्टार्टेड टू नो अबाउट दिस। तो ये हमें समझना जरूरी है, और सिर्फ हमारे बेटियों को नहीं, हमें अपने हस्बैंड्स, अपने बेटों ऑफ को भी ये कोर्स, ऑफ चीज कोर्स, बतानी बिल्कुल। चाहिए कि भाई जी, जी, जी। अगर हम पीरियड्स आने वाले हैं तो उसके एक हफ्ते पहले हमें थोड़ा सा ये ट्रबल होगा, एंड वी मे फील लाइक आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद थिंग्स और डू एनी रूटीन वर्क, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेगनेंसी में भी यही चीजें होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ वेरी वेरी पीरियड इन विच उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं हो रही होती है, बट जो बच्चा हमारे हम्म। अंदर पल रहा है उसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल चेंज हो रही है, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, एंड वी फील समटाइम्स टायर्ड, फटीग्ड। सो अगर उस वक्त हमें सिर्फ एक सपोर्ट मिल जाता है, चलो तुम आराम कर लो, चलो तुम ध्यान रख लो अपना, कोई बात नहीं। एंड आफ्टर डिलीवरी तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो वुमेन जो है वो क्या करती है, सभी कुछ उन्हीं को करना है, ज्यादा से ज्यादा एक मेड रख लेंगी, हस्बैंड्स के पास टाइम नहीं है, दे आर टू बिजी विद देयर वर्क, सो मदर इन लॉ या मदर थोड़े दिन के लिए आएंगी, बट रेस्ट व्हाट, सो दैट अगेन मेक्स देम गोइंग टू डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड वुमेन नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, नॉट प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स। बोलते हैं, बट दैट टाइम वाज रियली डिफिकल्ट। मतलब वो रात भर बच्चे को संभाला एंड देन नोबडी वाज अराउंड टू इवन होल्ड योर चाइल्ड कि आप थोड़ा सा आराम से बैठ राइट। जाओ। So this brings us to our next question, that what makes postpartum depression different from the regular depression, and why do people often miss the signs? ओके, सी देखो, डिप्रेशन जो आजकल यूज हो रहा है ना, बहुत कैजुअली ये वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। हम्म। मतलब क्लिनिकली अगर हम डिप्रेशन देखें, मतलब जो डायग्नोसिस अगर प्रॉपर करवाएं, तो फिर डिप्रेशन का मतलब होता है कि जिस जहाँ से आप फीलिंग वेरी होपलेस, फीलिंग इरिटेबल, गिविंग अप ऑन एक्टिविटीज विच यू एंजॉयड प्रीवियसली, यू गो इनटू आइसोलेशन, विदड्रॉन फ्रॉम अदर्स, किस कुछ पसंद नहीं आ रहा है, किसी से मिलना नहीं है, रोना आता है बिना बात का, ठीक है, कभी कभी तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आप सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं, सो दैट इज एक्चुअली डिप्रेशन। पोस्टमार्टम तब होता है जब डिलीवरी के बाद, सारी लेडीज को नहीं होता ये, जैसे हमने हम्म। बच्चा दिया तो कई बार क्या होता है कि कई बार बेबी अनवांटेड भी होता है, कि मेरा करियर था और मेरे हम्म। को बच्चा हो गया, मेरा करियर सेटबैक हो जाएगा, या हेल्थ नहीं है, बट लेडी की हेल्थ ही नहीं है, माँ बनने लायक उसकी हेल्थ ही नहीं, बट वो जी। बन गई है ना, हम्म। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, बॉडी वेट कम हो सकता है, और वो इतना बच्चा संभालने के लायक फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट शी now is now a mother. हम्म। Sometimes even this depression sets in after the second child. First child तो आपने खुशी से कर लिया, लेकिन सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड जब तक 3 साल का हुआ नहीं, आपका दूसरा बेबी आ गया, अभी आप ठीक से रिकवर ही हो रहे थे और दूसरा बेबी आ गया जल्दी से, तो फिर सेकेंड टाइम मुझे वो बेबी नहीं चाहिए, मतलब डर जाती है माँ कि बाप रे फिर से वही रातों को जगना और वो सारी चीजें। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये होता है कि आफ्टर द डिलीवरी, when the woman feels like she is not interested in the baby, she is not interested in anything, she just wants to give up on everything, and sometimes she feels her life is really worthless. This could be a temporary phase if she gets a full support from her family members, especially mother-in-law or mother. जी, जी, A जी। woman बिल्कुल, to बिल्कुल। woman talk if she gets, तो वो रिकवर जल्दी हो जाती है, नहीं तो कई बार एक एक साल तक ये चलता है। तो why it is ignored, it's a good question, why the signs are ignored, because what people feel is कि ये तो अभी माँ बनी है, ठीक है, थक गई होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हम भी तो माँ बने थे, उसमें कौन सी बड़ी हम्म। बात है। और लेडीज को एक टाइटल होता है गुड मदर, मदर शी, सो मदर मीन्स अच्छी बिल्कुल। मदर होगी, वो अपनी बेबी को कैसे नफरत कर सकती है, उसका अपना बेबी को वो कैसे छोड़ सकती है। तो हमारे अंदर ये कंडीशनिंग हो चुकी है, तो हमें अगर बुरा भी लग रहा होगा ना, थोड़ी देर हम बच्चे से इरिटेट भी हो जाए, हम शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर हमें सकते। लगता है, हमें गिल्ट फीलिंग आने लगती है, अरे मेरा ही बच्चा है, मैं ऐसे नफरत कैसे कर सकती हूँ, right? That's why the signs get ignored.
फर्स्ट थिंग इज दैट पीपल थिंक कि अभी तो माँ बनी है तो थकान तो होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, रात को सोई नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। और दूसरा, वो लेडी भी कई बार नहीं दिखाती बिकॉज शी गेट्स अ गिल्ट फीलिंग कि मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि ले जाओ बच्चे को, कैसे बोल दूं मैं माँ हूं। तो वो कंडीशनिंग की वजह से भी कई बार साइंस इग्नोर हो जाते हैं, बट आजकल अवेयरनेस है, सो डॉक्टर्स ऑल्सो डायग्नोस इट, डॉक्टर्स अंडरस्टैंड एंड वुमेन आर ओपनली स्पीकिंग अबाउट इट, सो आई थिंक। अभी थोड़ा सा कम नॉलेज है लोगों को या अवेयरनेस कम है कि हमें क्लिनिकली पहले चेक करा लेना जी चाहिए टू हैव बिल्कुल। that thing done before calling it a depression. Now tell me one thing, as women we wear many masks and we are always juggling work, family and everything in between. So how does that mental load really affect us? See, now here, let me go with a bit of, थोड़ा हमारी मम्मी, हमारी जो मदर्स थी, उनके और उनसे पहले जो वुमेन थी, their roles were clear cut. From childhood, they had a very clear cut role कि भाई तुम्हें शादी करनी है, हस्बैंड को देखना है, उसकी फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था. When it came to our mother, yes, in that generation, many women were really good educated and they did job also. But again, their priority was family. They never felt sad or very, lonely or depressed कि हमने नौकरी छोड़ दी बच्चों के लिए. उनकी प्रायोरिटी ही बच्चे थे, उनकी प्रायोरिटी फैमिली थी. बहुत एक्सेप्शनल केसेस अगर मैं छोड़ दूं तो मेजॉरिटी वुमेन वर विद दैट माइंडसेट. बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग, we are born and brought up with that word empowered woman. Now, what is empowerment? What do you understand by empowerment? Empowerment is like making yourself self sufficient. You're not listening to abuses, you're not going down with the people telling you anything or husband dominating or in-laws dominating. अभी ये हो गया भाई, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. That is why the juggle is there. क्लियर हाँ. रोल डेफिनेशन ही नहीं, मुझे सब कुछ करना है. हस्बैंड तो वैसे ही है, कहाँ चेंज हुए मेल, आप बताइए. बहुत कम मेल होंगे जो थोड़ा कॉपरेट कर रहे हैं, अदरवाइज मेजोरिटी आर लाइक कि ये तो तुम्हारा काम है, माय मॉम डिड, नाउ यू डू इट. बट आई वांट अ वाइफ हु इज XYZ विद अ जॉब एंड एवरीथिंग, एंड वुमेन आर रेडी टू प्रूव दैट. आप बोलो किसी लेडी को कि घर में बैठना है, एंड इफ शी इज एजुकेटेड शी वोंट बी हैप्पी टू स्टे. So True, this very true. juggle is because we have not defined our roles clearly. We have not told our husbands that, see, this is what I want in my life, and you have to help me with this. अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो we should be able to make our environment self sufficient. भाई मेड भी एक्सेप्ट कर लो, हस्बैंड भी हेल्प कर दें, इन लॉज थोड़ा समझ लें, तो जगल बचता ही नहीं है. बट हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी. Even now also I've seen many couples, they don't have kids, they don't plan to have kids. राइट. Rather than that they have pets with them, कि बच्चे से बेटर है हम पेट्स रखें अपने पास, which is strange but I don't know, मैंने अब खुद ऑब्जर्व किया है ये चीज. तो दैट इज डिंग्स, डबल इनकम नो किड्स, कि भाई हमें अपने लिए टाइम नहीं है, बच्चे को हम आया के पास ही छोड़ेंगे, इससे बेटर नो किड्स. और बच्चे कौन सा हमें संभालने वाले, वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स. That is also true. हाँ एंड हाँ बेटर वी बिल्कुल. बुक द ओल्ड एज होम्स फॉर आवरसेल्व्स नाउ ओनली. तो Ourselves, पैसा हाँ हाँ कमाओ हाँ. और एंजॉय करो. हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो बच्चे मतलब कहाँ से हम करें, कि वी डोंट हैव टाइम फॉर देम. And late marriages are also one of the reasons, when you're at a peak of your career, you get married, then you can't leave the career. You just don't have that thing in you that I should leave the career. वो भी हम्म. चीजें मैटर करती हैं. तो इस वजह से भी आप देखो, वुमेन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, फिर शी इज नॉट एबल टू कंसीव, शी इज नॉट गेटिंग किड्स, तो वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है ना. जी उसकी जी. वजह से हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड है अंदर, एंड शी इज स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज बीइंग अ वुमन, somewhere it is a natural tendency to have a baby, natural tendency. But then you're forcing yourself ki no, baby will be a hindrance to my growth, and you accept that life of no kids, but the hormones which are playing a role in your body, they are disturbing again your mental health. हमने काफी बार देखा है या हमेशा ही देखा है कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड वी टेंड टू गेन वेट. हमारे अपीयरेंस में भी चेंजेस आते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज द प्रेशर टू लुक अ सर्टेन वे impact women's self esteem?
सी बॉडी शेमिंग एक चीज आपने सुनी होगी, राइट? तो लेडीज का जो एक पैटर्न होता है कि भाई कंडीशनिंग होती है कि आपको जी इसी जी तरह जी। से दिखना है, आपको ऐसे ही लगना है, राइट? और आजकल का जो मतलब मेल है वो ये चाहता है कि हमारी वाइफ हमेशा हम्म। ब्यूटीफुल लगे, अच्छी लगे। तो आफ्टर प्रेगनेंसी द वुमेन इज ऑल्सो बिल्कुल बिल्कुल। वेरी कॉन्शियस बिकॉज ऑफ हर करियर और बिकॉज ऑफ द सोसाइटल थिंग्स कि भाई मुझे अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल रहना है। हम अपनी बॉडी को हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भाई अभी तुम प्रेगनेंसी में वेट गेन किया है तो धीरे धीरे वेट लॉस होगा, आप अपने डाइट एक्सरसाइज पर फिर से आ जाओ आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर केटरिंग टू योर नर्चरिंग योर हम्म। बेबी 3 मंथ्स। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्रेस्ट जी जी। फीडिंग अगर आप करते रहोगे ना, एक तो कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है, दूसरा वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। बट वुमेन डोंट टेंड टू डू ब्रेस्ट फीडिंग वट एवर रीजन दे हैव। तो उसकी वजह से काफी सारे रिस्क डेवलप हो सकते हैं लाइफ में। तो पहले तो खुद की बॉडी को एक्सेप्ट करो कि जी। अभी मेरा नया रोल है, मैं माँ बनी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूं जैसी हूँ। आई विल गेट माई बॉडी बैक, आई विल बी बैक टू नॉर्मल। होता है वो, बट होता क्या है, हम आलसी हो जाते हैं या हमें थोड़ा डरा दिया जाता है, सिजेरियन हुआ है, तुम ये मत एक्सरसाइज करना, वो मत करना, या फिर तुम इतना खाओ, इतना मत खाओ। सो वो सब चीज से क्या होता है कि हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कि ठीक है यार, अब जो चल रहा है चलने दो, कौन मेहनत करेगा। लेकिन आप 3 महीने अपने आप को दीजिए, अच्छे से खाइए पिए, मतलब अपना न्यूट्रिशनल पूरा रिकवर कीजिए, क्योंकि आप फीडिंग भी करा रहे हो, बेबी को फीड भी कर रहे हो। एटलीस्ट 6 मंथ्स यू फीड योर बेबी, राइट? बट फर्स्ट 3 मंथ्स फोकस ओनली ऑन गेटिंग बैक टू नॉर्मल, कमिंग बैक। तो अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ये सोचो कि यस, नाउ इट्स माय न्यू लाइफ, so I accept my body as it is. I will recover it internally, mentally, physically this next 3 4 months, and then get back to shape. I'll work on that. So that attitude when we have, then we find ways how to do it. यस आजकल तो करेक्ट। सब मेन ऑनलाइन थिंग इज क्लासेस भी अबाउट द, हैं। ऑफ बिल्कुल। कोर्स द मेन थिंग इज अबाउट द एटीट्यूड। ये आपने सही बोला, बिल्कुल द वर्ड इज एप। आई थिंक फैमिली का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली अगर सपोर्ट करेगी तो आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस होना चाहिए एक फीमेल को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो आप सही कह रहे हैं, बट सी एवरी फैमिली इज डिफरेंट, एवरी डिफरेंट, फैमिलीज करेक्ट करेक्ट कंडीशनिंग इज करेक्ट डिफरेंट। सो करेक्ट। वी कैनॉट डिपेंड टोटली ऑन द फैमिली ऑल्सो। दैट इज 100%, आई एग्री दैट it is a major factor because we are going through so many things after delivery, our body is weak, our mind is weak, so we are expectations हमारी बहुत बढ़ जाती हैं। तो वही हमारे से फिर वो डाइवर्जन शुरू हो जाता है कि अब हमें मतलब कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है उसमें। जी बिल्कुल। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ और आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से, किस हद तक दे सकता है? बहुत बहुत दे सकता है वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्योंकि पूछने की देखिए बात ही नहीं है, फाइनेंशियल बट इंडिपेंडेंस मैं ऑल्सो। पहले समझाना चाहूंगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम किसे कह रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग अ जॉब, मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि आप जॉब भी कर रहे हो फिर भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि पैसा आपके हाथ में आ ही नहीं रहा है, सारा आपके हस्बैंड के पास जा रहा है इन दैट जॉइंट अकाउंट, एंड ही इज द डिसीजन मेकर कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ खर्च होगा, कितना रेशनिंग वो कर रहे हैं। तो आप ट्रू। कहाँ से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो? और कई बार मैंने ऐसी लेडीज भी देखी है कि हस्बैंड ने सारा उनको दे रखा है कि भैया मैं तो कमा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम संभालो, तुम मैनेज करो घर, तो उनके हाथ में पैसा है, हम्म। या तो अकाउंट में या वट एवर कार्ड्स दे हैव ऑफ देयर हस्बैंड्स, एंड हस्बैंड इज सेइंग यू आर द डिसीजन मेकर, and certain major decisions they sit together and take it, then you say yes, financially independent woman. Okay, so financial independence का मतलब है कि you are able to take decisions of your money, whether it's a joint money with your husband or whether you're earning as an independent woman. So when you are the decision maker of their finances, of course, तब तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम 100% ऊपर ही रहेगा। लेकिन आप कमाते हुए भी आपके हाथ में डिसीजंस नहीं है तो आपका सेल्फ एस्टीम लो रहेगा, देन यू कैन नॉट से दैट यू आर अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन।
क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है, आपको छोटे Mhm. मोटे खर्चे करने हैं, अपने पर्सनल कुछ करना है, आपके बेटी की शादी हो गई है या आपके बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आपको इतना अच्छा लगता है कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ रहा, और मैं अपने आप के, मेरी बेटी घर आई है तो मैं उनको दे रही हूँ, कुछ गिफ्ट दे रही हूँ, सो नोबडी इज इंटरफियरिंग इन दैट. So that confidence gives you really a very good feeling inside. Your mental health is also in a good state. Of course, financial independence होना चाहिए, and all women should learn about financial management. Whether it's a bank account opening, FDs, सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजें, कई लेडीज वो भी खुद नहीं करती हैं. नहीं, हाँ, नहीं आता उनको, उनको बिल्कुल। क्योंकि पापा करते थे पहले, अब हस्बैंड जी, करते हैं, जी। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. दिस इज देयर स्टेटमेंट. बट आई थिंक बेसिक एटलीस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू शुड बी एबल टू डू. किटी पार्टीज में तो हम सेव करते हैं, बट देन हाउ टू ग्रो द मनी इज अ डिफरेंट स्टोरी. Okay, coming to women into the mental state, what can women do when their feelings or mental health concerns aren't being taken seriously by doctors or therapists? So this is a good point what you have said, because what is happening again, we go back to conditioning. The therapists, the counselors are belong to the same society. राइट. Correct. एंड व्हाट इज देयर कंडीशनिंग कि ये तो नॉर्मल सी बात है, आप इतना क्यों स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं. जी, जी, जी। यहाँ पे आप, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी थप्पड़ मूवी का, इफ यू हैव सीन दैट मूवी. Yes, yes, I've राइट. seen. तो एवरीबडी इज एडवाइजिंग हर, इट वाज जस्ट अ थप्पड़ यार, इसमें क्या है. True. होता रहता है हस्बैंड वाइफ में, बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि क्या Hmm. होता रहता है. इट वॉज नॉट माई मिस्टेक एट ऑल. बिल्कुल, बिल्कुल। सो वो जरूरी है कि हम खुद आइडेंटिफाई करें कि हाँ, हमें कुछ इशू है, हमें जैसे शरीर में और पार्ट्स में इशू होता है, तो हाँ, हमारे यहाँ भी इशू है, बट मतलब हम पागल नहीं है. सेल्फ अवेयरनेस पहले होना चाहिए। बहुत जरूरी है. So That is that means we need someone or some place to speak about this thing. right, right. So according to you, why is it important to have an open space where a person can go, a female can go and talk about her mental stress or whatever she is facing? फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अगर ये किसी को बताएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें जज करेंगे, तो Mm-hmm. इसलिए हम किसी से बात नहीं करते हैं खुल के. कि भाई, एक तो औरतों को आदत भी होती है कि अपने घर की प्रॉब्लम्स चार लोगों के बीच में नहीं बताना, क्योंकि मजाक उड़ाया जा सकता है, हमारा फायदा उठाया जा सकता है. लेकिन एक स्पेस जहां पर लोग नॉन जजमेंटल है. Nobody is going to leak out her secrets. Nobody is going to judge her why she is in that condition, but just an open ear to listen to what she's going through. There are many helplines, but helplines, women helplines नहीं है, वो जनरल हेल्पलाइंस है, सुसाइडल हेल्पलाइंस है. अभी आप 10th के बोर्ड के लिए आप देखते हो कितनी तुरंत हेल्पलाइंस जी, खुल जी, जी। जाती है, जब हाँ, एग्जाम्स होते हैं तब, और रिजल्ट्स आते हैं तब, कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, बच्चे कहीं सुसाइडल ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चले जाए, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर. बट ऐसी कोई स्पेसिफिक हेल्पलाइन हमें देखनी होगी जो ओनली वुमेन प्रॉब्लम्स को सुन रही है विदाउट एनी जजमेंट. But then why are you stressed out? Why you don't feel energetic? देखते हो, आप पिलर की तरह रेस्ट लेते हो. अच्छा, बच्चे ट्यूशन चले गए, चल अब सो लेती हूँ आधा घंटा. बिल्कुल, फिर उस बिल्कुल। वक्त मेड ने घंटी बजा दी, कोई कुरियर आ गया, तो कहाँ आपका रेस्ट है. चल आज मैं पिक्चर देखने चली जाती हूँ फ्रेंड के साथ. अरे नहीं नहीं, आज तो संडे, आज पॉसिबल नहीं है, घर में सब लोग हैं. राइट. वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग आर थिंग्स. So, but we are literally confused in many things, and we have to sort out that so that we have a good mental and physical health. Silent sufferers are there, plenty of silent sufferers are there. They don't just want to, they feel कि नहीं, हमें हमारी ड्यूटीज पूरी नहीं हुई, फर्ज पूरे नहीं हुए, अभी तो बच्चे भी देखेंगे, अभी मतलब lot of things. जी। So that awareness is only where women are empowering that thing, or working with some NGOs, और बिल्कुल लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, मेड्स एंड ऑल, वहां पर है कि हाँ भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर तो सेमिनार्स वेबिनार्स भी होते हैं इन लोगों के, हम्म। कि जहां पर उनको अवेयरनेस करवाई जाती है कि भाई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पति मारता है, कुछ है, या आपको कोई और तकलीफ है, बच्चों ने निकाल दिया, जो भी, आप हमारे पास आइए या इस जगह जाइए. हमारी सोसाइटी में है. डू यू थिंक यू एवर अटेंडेड सच काइंड ऑफ अ सेमिनार?
नहीं. We don't feel that need कि हमें क्या जरूरत है, हम क्यों जाएंगे ऐसी हेल्प के लिए. तो वो वहाँ पे माइंडसेट को डिफरेंस. चेंज करना भी जरूरी है अभी. यस, यस. That was amazing talking to you, Rinku ji, and I'm sure we will soon come up with a next podcast जहाँ पे आपसे और अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, जी या जी. तो मे बी हम लोग इसी टॉपिक को और भी ज्यादा एक्सटेंड करेंगे. Thank you so much for joining us in थैंक the यू सो मच प्रतिमा, थैंक यू वेरी podcast. मच. Wow, what an honest and uplifting conversation. If today's episode touched your heart or sparked a shift in your perspective, don't forget to like, share, and subscribe. Let's keep spreading awareness and compassion, one conversation at a time. Until next time, take care of your mind, nourish your soul, and keep choosing you. This is your host, Pratima, signing off with love and light. Thank you.